Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and also revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 6, which is images, links, forms in HTML5. तो in this chapter हम लोग पढ़ेंगे कि जो HTML5 है उसके अंदर हम links, images और forms को कैसे create करते हैं, कैसे उसको involve करते हैं in our HTML5 document. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Images, Links and Forms in HTML5. The topics which we will discuss are interesting images, linking web pages, embedded audio and video, creating forms in HTML. Now we have an activity which says write the HTML code to display the following outputs on the browser. तो आपको क्या करना है, एक HTML कोड लिखना है जो इस तरीके का एक टेबल या इस तरीके का एक आउटपुट आपको ब्राउजर पे देगा. So in the previous class हमने learn किया about the introduction of HTML5, lists and tables. In this chapter हम लोग learn करेंगे about images, links and forms in HTML5. Firstly we will understand about inserting images. Web pages जो है वो display करते हैं drawings, paintings या फिर computer generated art. You can also display your favorite artwork. आप अपना favorite artwork भी display कर सकते हो in the web page. आप add कर सकते हो images to improve the appearance of your web pages. इमेज फाइल फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स इंक्लूडिंग GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG which is joint photographic export group and PNG which is portable network graphics. So first one is IMG tag. जो IMG tag है हम उसका यूज करते हैं टू इंसर्ट इमेज इन अ HTML डॉक्यूमेंट. ये एक empty tag होता है which uses src attribute to select the image along with its path. जहां पे जो फाइल है, इमेज फाइल है वो स्टोर्ड होती है. तो src is one of the mandatory attribute of image tag. इसका सिंटेक्स होता है image src equals to url. तो src attribute टेल करता है ब्राउजर को that where to find the image and its value is the URL of the file. Address or the path of image is taken as value by src attribute. Let us discuss the case of different addresses that can be accepted by src attribute. केस 1 होता है कि अगर आपके पास कोई सेव्ड है, जैसे flower.jpg इन डॉक्यूमेंट फोल्डर एक सेव्ड है आपके पास, तो जो एड्रेस है वो होगा c./my documents, my pictures and then image. Case 2 है आपके पास if you have saved JPG in the same folder as the HTML document, कि आपने उसी फोल्डर में सेव किया है जिसमें आपका HTML डॉक्यूमेंट है, देन जो एड्रेस होगा वो डायरेक्ट आपका इमेज का होगा. Let us study the example given on the next page to understand the use of src attribute with image tag to display image on a web page. हमने यहाँ क्या किया, नॉर्मल अपना कंटेंट लिखा, इमेज src में हमने डायरेक्ट इमेज को दे दिया बिकॉज वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट वाले फाइल में स्टोर था. तो इस तरीके से हमारी इमेज आ जाएगी. It is important to keep the image file and the HTML document file in the same folder ताकि हमारे को कम एफर्ट करना पड़े और हमारा वर्क जल्दी हो जाए. There is a question, which attribute of body tag is used to place an image as a background? कौन सा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का जिसको हम यूज करके इमेज को ऐसा बैकग्राउंड कर सकते हैं? तो इट इज BG कलर, बैकग्राउंड. नाउ अदर एट्रीब्यूट्स जो है इमेज टैग के वो क्या है, वो कुछ एट्रीब्यूट्स है जो मदद करते हैं इमेज टैग के अंदर हमें टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. जैसे src, इमेज src इक्वल्स टू फाइल नेम. ये मदद करता है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल. इमेज शुड बी इन .bft, gif या फिर jpg, png फॉर्मेट. अलाइन, इमेज src इज इक्वल्स टू फाइल नेम, देन अलाइन लेफ्ट या फिर राइट. हम अपनी इमेज को लेफ्ट राइट अलाइन करा सकते हैं. ये स्पेसिफाई करता है अलाइनमेंट ऑफ द इमेज लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, कि हमारी जो इमेज है वो वेब ब्राउजर पे कौन से वेब पेज पे कहाँ होनी चाहिए. बॉर्डर, इमेज src इज इक्वल्स टू फाइल नेम दिया, बॉर्डर इज इक्वल्स टू बॉर्डर की थिकनेस बता दी इन पिक्सल. तो ये क्या करेगा, हमारी इमेज को एक बॉर्डर देगा एंड विद द स्पेसिफाइड थिकनेस. हाइट, यहाँ पे क्या है, इमेज है, हाइट पिक्सल्स में हमने डिफाइन कर दी, तो हमारी इमेज की हाइट वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ नंबर से डिस्प्ले होगी. विड्थ, यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर की विड्थ दे दी तो विड्थ स्पेसिफाई हो जाएगी. ऑल्ट, इमेज src इज इक्वल्स टू फाइल नेम, ऑल्ट यानी कि डिस्क्राइब कर दिया हमने फ्लावर. तो यहाँ पे टू स्पेसिफाई द ऑल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर इफ इमेज प्रोवाइडेड इमेज इज नॉट फाउंड. मतलब अगर हमारी प्रोवाइडेड इमेज फाउंड नहीं होती तो ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं.
study the following example to understand the use of various attributes with image tag to display the image on web page. तो हमने यहाँ क्या इमेज src is equals to sunflower, इमेज की लोकेशन दे दी, हाइट दे दी, विड्थ दे दी, बॉर्डर एंड अलाइनमेंट. So this is how the output will turn out. सेंटर टैग एक कंटेनर एलिमेंट है एंड हम इसका यूज करते हैं टू अलाइन टेक्स्ट या फिर इमेजेस इन द सेंटर ऑफ द पेज. जो टैग है वो स्पेशली यूजफुल होता है फॉर सेंटर अलाइनिंग इमेजेस बिकॉज वी कैन नॉट डू इट यूजिंग द इमेज टैग. जो सिंटेक्स होता है इस टैग का वो होता है सेंटर टेक्स्ट या फिर इमेज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द इमेज टैग या एंड क्लोज द सेंटर. Observe and try the following source code and see the effect in the web browser. आपको इस सोर्स कोड को ट्राई करना है एंड अपने वेब ब्राउजर पे उसका इफेक्ट देखना है जहाँ पे हमने सेंटर अलाइन किया इमेज को सनफ्लावर वाली, which is this. Now HTML image by default appear होती है in line with text, that is इसका जो बॉटम है वो aligned होता है with text. बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो हम कन्वीनियंटली पिक्चर को प्लेस कर सकते हैं टू द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज एंड जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो यूज होता है इन द बॉडी टैग फॉर सेटिंग एनी इमेज या फिर पिक्चर एज अ बैकग्राउंड. So let us study the following example to understand how to set a background image. So while displaying a background image, हमें make sure करना है कि जो टेक्स्ट है वो easily readable हो when displayed on the top of the image. अगर इमेज छोटी है then the page it will repeat itself. तो हमने यहाँ क्या किया, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू ट्री, तो हमारा यहाँ पे वेब पेज का बैकग्राउंड ही ट्री का हो जाएगा. नाउ लिंकिंग इन HTML, कोई भी वेब पेज है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं टू अदर बाय क्रिएटिंग अ लिंक या फिर हाइपरलिंक. तो लिंक्स एनेबल करते हैं यूजर को टू नेविगेट फ्रॉम वन टॉपिक टू द नेक्स्ट ऑन द वेबसाइट एंड फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर. जो यूजर है वो क्लिक करता है लिंक को एंड जो ब्राउजर है वो ओपन हो जाता है, ओपन कर देता है डेस्टिनेशन पेज एंड लिंक कैन बी अ टेक्स्ट और इमेजेस. एंकर टैग, ए टैग होता है जो कंटेनर टैग है, दैट मीन्स इसका एक एंडिंग टैग भी होता है. द पेज ऑफ अ फाइल दैट इज टू बी लिंक्ड इज स्पेसिफाइड विद दिस टैग, यानी कि फाइल का वो पेज जो हम लिंक करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करता है ये वाला टैग यूजिंग href एट्रीब्यूट. तो इसका सिंटेक्स होता है इस टैग का फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक वो होता है href इज इक्वल्स टू URL टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स जो डिस्प्ले करना है एज अ लिंक एंड देन क्लोज द एंकर टैग. जहाँ पे href क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई करता है डेस्टिनेशन ऑफ अ लिंक एंड इज गिवन बाय द URL. यहाँ पे जो URL है वो लोकेशन है ऑफ द रिसोर्स टू विच हमें क्या चाहिए, लिंक. लिंक एक्टिवेट होता है बाय क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट या फिर ग्राफिक बिटवीन a and /a tags. Linking using anchor tag can be done in three ways. Local to a page of the same website, जब आपको क्या करना है उसको लिंक करना है एक ऐसे पेज से जो सेम वेबसाइट का है. एक्सटर्नल, जब आपको एक ऐसे पेज के साथ लिंक करना है जो कोई दूसरी वेबसाइट का है. और इंटरनल, जब आपको सेम पेज के किसी सेक्शन को लिंक करना है. Here we will learn about local linking. जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, href link one HTML. Click here to know more about linking. So this is how the link is created. In this example, we make the words click here to know about to know more on linking as the hyperlink. हम यहाँ पे इसको as a hyperlink prepare कर रहे हैं to the document link one HTML. When you click the link, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट है link one HTML वो ओपन होगा as given below like. Now creating links to the image, अगर हमें लिंक क्रिएट करना है किसी इमेज के लिए तो क्या करेंगे, इमेजेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स. हम इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं किसी हाइपरलिंक के लिए. तो वी यूज इमेज टैग जब भी हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है इन द HTML डॉक्यूमेंट. तो इफ यू वांट टू यूज अ इमेज, अगर आप चाहते हो कि आप हाइपरलिंक के प्लेस पे किसी इमेज का यूज करो तो आप क्या करोगे, एनक्लोज करोगे हाइपरलिंक को डॉट ऐसे इमेज टैग में इन द प्लेस ऑफ हाइपरलिंक टेक्स्ट लाइक दिस. अब क्या करोगे, href इज इक्वल्स टू URL image src इज इक्वल्स टू फाइल नेम विद एक्सटेंशन. तो हमने इस एग्जांपल में यूज किया है href इज इक्वल्स टू laugh.html एंड image src इज इक्वल्स टू इमेज की लोकेशन. लर्न टू बी हैप्पी, इमेज पे क्लिक करेंगे तो लाफ्टर इज अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फॉर माइंड एंड बॉडी, इस तरीके का कंटेंट अपीयर होगा. क्लिकिंग द इमेज विल ओपन अ वेब पेज laugh.html. जब हम उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे को वो दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा विच इज laugh.html
and the image having a blue border around it indicates that it is a hyperlink. जो इमेज के अराउंड ये ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि ये एक हाइपरलिंक है. So now next is defining colors for links. Links के लिए कलर कैसे डिफाइन करते हैं? Links by default show up होते हैं different colors में from the rest of the text on the web page. तो कलर है टेक्स्ट लिंक का वो चेंज किया जा सकता है by using following attributes in the opening body tag. तो लिंक ये डिफाइन करता है कलर ऑफ द अनविजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो अनविजिटेड लिंक्स है उनके कलर को ये डिफाइन करता है. जो डिफॉल्ट कलरिंग होती है ऑफ लिंक एट्रीब्यूट वो होती है ब्लू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लिंक. नाउ ए लिंक क्या है? ये डिफाइन करता है कलर ऑफ द लिंक व्हाइल इट इज बीइंग लिंक्ड. जो डिफॉल्ट कलरिंग है ऑफ ए लिंक एट्रीब्यूट वो होती है रेड. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव लिंक. हम इसको एक्टिव लिंक भी बोलते हैं. Now, वी लिंक ये डिफाइन करता है कलर ऑफ अ लिंक आफ्टर इट हैज बीन विजिटेड. मतलब जिस लिंक को हम विजिट कर चुके हैं उसके कलर को डिफाइन करता है वी लिंक. एंड जो डिफॉल्ट कलर होता है इसका वो होता है पर्पल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विजिटेड लिंक. फॉर एग्जाम्पल बॉडी लिंक इक्वल्स टू ब्लू, ए लिंक ग्रीन, वी लिंक कुछ ये डिस्प्ले करेगा अनविजिटेड लिंक इन ब्लू कलर, एक्टिवेटेड लिंक इन ग्रीन कलर एंड विजिटेड लिंक इन कुछ कलर. तो एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो. ऑडियो वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं? हम ऐड कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो क्लिप्स फ्रॉम अ फाइल इन द HTML पेज यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो टैग्स रिस्पेक्टिवली. तो ऑडियो टैग कंटेनर टैग है, दैट मीन्स यहाँ पे एंडिंग टैग भी होता है. तो कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट्स जो है ऑडियो टैग के वो है कंट्रोल, SRC, लूप, ऑटो प्ले. तो कंट्रोल क्या करता है? ये कंट्रोल एट्रीब्यूट ऐड करता है ऑडियो कंट्रोल जैसे प्ले, पॉज, वॉल्यूम. SRC स्पेसिफाई करता है URL, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ द ऑडियो फाइल. लूप क्या करता है? लूप मेक्स द ऑडियो फाइल प्ले रिपीटेडली. ऑटो प्ले प्ले करता है ऑडियो फाइल को एज सुन एज वो लोड हो जाती है. तो जो सोर्स एलिमेंट है वो अलाउ करता है हमें टू स्पेसिफाई द ऑल्टरनेटिव ऑडियो फाइल which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format. हमने यहाँ क्या किया? Source SRC equals to C, computer music या फितूर रिंगटोन जो भी हमारा साउंड है वो हमने यहाँ पे डाला और इस तरीके से वो हमें एज एन आउटपुट मिल जाएगा. वीडियो टैग के लिए हम क्या करते हैं? ये भी कंटेनर टैग है जहाँ पे स्लैश वीडियो इसका एंडिंग टैग होता है. एंड जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो है SRC, लूप, हाइड, विद, कंट्रोल, म्यूटेड. तो SRC क्या करता है? सोर्स ऑफ द वीडियो फाइल बताता है. लूप वीडियो को रिपीटेडली प्ले करवाता है. हाइट और विड्थ क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं हाइट एंड विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर एंड इट कैन बी एडजस्टेड बाय गिविंग द वैल्यू इन पिक्सेल्स. कंट्रोल डिस्प्ले करता है वीडियो कंट्रोल्स को एंड म्यूटेड यानी कि डज नॉट प्ले द ऑडियो जब वीडियो प्ले हो रही है. तो इसके लिए हमने क्या किया? सब चीजों को डिफाइन कर दिया. वीडियो विड्थ, हाइट, कंट्रोल्स की लोकेशन. तो दिस इज हाउ द वीडियो विल लुक लाइक. फॉर्म्स इन HTML. आप फॉर्म का यूज कर सकते हो टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है. फॉर्म के पास एक इनपुट फील्ड होती है टू रिमाइंड यूजर्स टू एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लिमिट चॉइसेस टू वैलिड ऑप्शंस ताकि वो क्या करे? इनकरेक्ट डेटा एंट्री अवॉइड करें. फॉर्म प्रोवाइड करता है एक इजी वे टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज विजिटर्स. HTML प्रोवाइड करता है two main tags which are form and input to handle the forms on the web page. Let us learn about these in detail. Form tag जो HTML है में form tag है उसका यूज करते हैं हम टू क्रिएट HTML फॉर्म. एक कंटेनर टैग है मतलब इसका एक एंडिंग टैग होता है स्लैश फॉर्म. इसके अंदर कुछ रिलेटेड टैग्स होते हैं जैसे इनपुट, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया that are used inside the opening form and closing form tag. फॉर्म एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जैसे चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट एंड रीसेट बटन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेट्रा. जो एलिमेंट्स हैं इन द फॉर्म दे मस्ट बी डिफाइंड बिटवीन द फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म टैग्स. अदर टैग्स जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एक्सेट्रा उनका भी हम यूज कर सकते हैं बिटवीन दीज टू टैग्स. लेट्स स्टडी दीज एलिमेंट्स इन डिटेल नाउ. सबसे पहला आता है इनपुट टैग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट है एंड इसको हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड इनपुट फील्ड when a user enter data within a form. तो इनपुट टैग है उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट विच आर गिवन बिलो. तो टाइप के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ फील्ड वी वांट टू क्रिएट. इट टेक्स वन ऑफ द प्री डिफाइंड वैल्यूज. जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं फॉर द एट्रीब्यूट्स आर टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, बटन, सबमिट, रीसेट, पासवर्ड.
तो टेक्स्ट के अंदर ये एक टेक्स्ट बॉक्स फील्ड को क्रिएट करता है। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड जो है वो वन लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है। टेक्स्ट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। रेडियो, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ रेडियो बटन कंट्रोल, एंड रेडियो बटन कंट्रोल को हम सिलेक्ट करते हैं ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शन। चेकबॉक्स, ये वैल्यू दिस वैल्यू इज यूज टू क्रिएट अ चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल अलाउ करता है टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस। बटन, ये जो वैल्यू है इसका हम यूज करते हैं टू क्रिएट एक्शन बटन कंट्रोल। एक्शन बटन कंट्रोल को यूज करते हैं हम टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन ऑन अ क्लिक। सबमिट, ये हम यूज करते हैं सबमिट कंट्रोल बटन बनाने के लिए, जो क्या करता है हमारे फॉर्म को सबमिट करने में, हमारी एंटर्ड वैल्यूज को सबमिट करने में मदद करता है टू द स्पेसिफाइड यूआरएल। रीसेट, ये जो वैल्यू है इसका यूज करते हैं हम रीसेट बटन कंट्रोल बनाने के लिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो एंट्रीज है अगर वो बाय मिस्टेक गलत हो जाती है तो उनको सारी की सबको क्लियर करने के लिए ऑन अ सिंगल क्लिक हम इसका यूज करते हैं। पासवर्ड, ये जो वैल्यू है हम इसको यूज करते हैं टू क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड इज जस्ट सिमिलर टू द टेक्स्ट बॉक्स, एंड जो ओनली डिफरेंस है वो है कि जो टेक्स्ट एंटर्ड होता है इन द पासवर्ड फील्ड वो रीडेबल नहीं होता बिकॉज इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार सिंबल। सेकेंड आता है नेम, जो एट्रीब्यूट है उसको हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ फील्ड ऑन अ वेब पेज। वैल्यू, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड। सिंटेक्स ऑफ इनपुट टैग होता है इनपुट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू नेम इक्वल्स टू वैल्यू। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड पासवर्ड फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा है वो हमें दिखता है, रीडेबल होता है जो भी हम एंटर करते हैं, बट पासवर्ड फील्ड में जो हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो रीडेबल नहीं है बिकॉज वो स्टार्स की फॉर्म में दिखता है। लेट अस क्रिएट अ वेब पेज शोइंग द अबव एट्रीब्यूट्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, लास्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम। तो हमारे पास इस तरीके से दो बॉक्सेस आ जाएंगे फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लेट अस लुक द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एंट्री यूजिंग पासवर्ड वैल्यू। तो हमने क्या किया, यूजर आईडी इनपुट कराई हमने, फिर हमने पासवर्ड इनपुट कराया फ्रॉम द यूजर। तो एक यूजर आईडी का बॉक्स आ जाएगा और एक पासवर्ड का। चेकबॉक्स एट्रीब्यूट के लिए हमने क्या किया, हमारे को ऑप्शंस देने पड़ेंगे। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिए हमने तीन, पहले में हमने नेम लिया कंप्यूटर वैल्यू, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या फिर साइंस। तो हमने तीन ऑप्शन यहाँ पे एज अ चेकबॉक्स प्रोवाइड करा दिए जहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन से एक को चूज कर सकते हैं। रेडियो बटन एक्टिवेट करने के लिए रेडियो नेम, रेडियो बटन होता है इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे मेल फीमेल का ऑप्शन अपेयर करा दिया। सबमिट या फिर रीसेट बॉक्स, फॉर एवरी फॉर्म हमारे को सबमिट बटन रिक्वायर्ड होता है टू सबमिट द फॉर्म डेटा टू द वेबसाइट। सबमिट बटन ट्रांसफर कर देता है डेटा फॉर्म को टू द सर्वर, एंड जो सबमिट बटन है वो ग्रे कलर का होता है विद द लेबल ऑफ चॉइस एंड वैल्यू एट्रीब्यूट डिस्प्ले होता है ऑन द फॉर्म। ऑल द डेटा इन द फॉर्म इज सबमिटेड जस्ट बाय क्लिकिंग इट। इसका इनपुट टाइप होता है सबमिट, ये इसका सिंटेक्स है। तो इन द अबव स्टेटमेंट्स डिफाइन सबमिट बटन। नेम, जो स्पेसिफाई करेगा नेम ऑफ द बटन। वैल्यू, जो स्पेसिफाई करेगा रिटन टेक्स्ट रिटन ऑन द बटन। नेम सेटिंग adds an internal name to the button, so जो प्रोग्राम है that handles the form does not confuse the button with the other fields। तो जब भी कोई डेटा एंटर होता है फॉर्म में, that has to be erased and default values have to be taken। रीसेट बॉक्स का यूज किया जाता है जब भी कोई यूजर रीसेट बटन पे क्लिक करता है, सारी की सारी एंट्रीज जो है फॉर्म में वो क्लियर हो जाती है, एंड द यूजर कैन एंटर द डेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सिंटेक्स होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। एट्रीब्यूट्स होते हैं रीसेट के, नेम वैल्यू, नेम स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ द बटन और वैल्यू टेक्स्ट रिटन ऑन द बटन। लेट अस लुक एट द गिवन एग्जांपल बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सबमिट एंड रीसेट बटन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजर का नेम इनपुट कराया हमने, साइज दे दिया 30, देन पासवर्ड इनपुट करा रहे हैं हम, एंड सबमिट कर रहे हैं वैल्यू। सबमिट और रीसेट हमने यहाँ पे इनपुट करा दिया। तो यूजर का नेम जैसे यहाँ पे आ रहा है नमन, देन उसका पासवर्ड, देन सबमिट एंड रीसेट। नाउ व्हाट इज टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग का हम यूज करते हैं टू क्रिएट मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, जो एक्सेप्ट करता है लॉन्ग टेक्स्ट वैल्यूज को एंड स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर वी वांट द टेक्स्ट एरिया by using the rows and column attribute of the text area tag। जैसे हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट एरिया में रो 5 कॉलम 50 नेम डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज हाउ विल लुक लाइक।
सेलेक्ट टैग क्या करता है, समटाइम्स हमें नीड होती है टू डिस्प्ले मल्टीपल ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू या फिर लिस्ट फ्रॉम विच हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक ऑप्शन को एट अ टाइम। जो सेलेक्ट टैग है विद द ऑप्शन टैग अलाउ करता है हमें टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड जो ऑप्शन टैग है वो स्पेसिफाई करता है ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिंटेक्स होता है सिलेक्ट टैग का, सिलेक्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन n स्लैश सेलेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। तो हमने यहाँ क्या किया, सिलेक्ट नेम ड्रॉप डाउन एरो, हमने कुछ सब्जेक्ट का नेम चूज करा रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन वैल्यू फर्स्ट में मैथ्स, ऑप्शन वैल्यू साइंस कंप्यूटर। दिस इज हाउ द थ्री ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड। दिस एक्टिविटी, व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो चेक बॉक्स किस लिए यूज होता है, चेक बॉक्स होता है जब हमारे को मल्टीपल ऑप्शंस में से एक को चूज करना होता है। ऑल्ट होता है ऑल्टरनेट के लिए, कि सपोज आपने कोई इमेज डाली है, वो इमेज वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप डाल सकते हो। एसआरसी होता है टू यूआरएल प्रोवाइड करने के लिए किसी भी ऑडियो का, वीडियो का। नेम होता है टू स्पेसिफाई द नेम और टेक द इनपुट ऑफ द नेम। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। इमेज टैग का हम यूज करते हैं टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट्स जो है फॉर इंसर्टिंग इमेजेस वो है GIF एंड JPEG। SRC एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ वेब पेज। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं फ्रॉम द बॉडी टैग फॉर सेटिंग एन इमेज एज अ बैकग्राउंड। एंकर टैग का हम यूज करते हैं टू मेक अ टेक्स्ट और एन इमेज एज हाइपरलिंक, एंड दिस टैग इज अ कंटेनर टैग। Images can also be used for creating hyperlinks. जो कलर होता है टेक्स्ट लिंक का वो स्पेसिफाइड होता है विद लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग। जो फॉर्म टैग है उसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट द फॉर्म बाउंड्री ऑन द वेब पेज। Various HTML tags that are used for collecting the information from the user are input, select, and text area. Attributes that can be used within input tag are text, password, checkbox, radio, submit, reset. टेक्स्ट एरिया टैग का हम यूज करते हैं टू इनपुट सेवरल टेक्स्ट लाइंस एट अ टाइम। लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। टू ऐड मीडिया टू अ वेबसाइट, dash attribute is used to identify the media source. It is HREF. Dash tag specifies an image to be displayed on a web page. SRC. Dash provides an easy way to collect required information from web page visitors. Form. It is a highlighted text or image which when clicked takes to the another web page. Hyperlink. And best suitable input type to record gender from a user is radio. Next is true false. An image is set in the center using the center attribute in image tag. True. The value of the SRC attribute is the location URL of the image to be displayed. True. Select tag is used to display the list of choices. False. Form tag is used to create a form boundary on the web page. False. A tag is used to mark the text as a hyperlink. True. Let's do fill in the blanks. The dash attribute helps to display a text message instead of image. Alt. The anchor tag is a container tag. Dash connects a web page to another web resource. Hyperlink. Dash tag inside the dash tag defines the available options in a list. So here the option tag inside the select tag defines the available options in the list. Dash tag is used to input several text lines at a time. Text area. So students, this was your complete chapter about links, forms, images in HTML5. I hope the chapter is clear to you. Do revise the chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.